Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about data and charts beta. So let's start with that chapter. We may study various factors and collect informations on different subjects in our daily life, like number of boys or girls in a class, number of students who like different games, number of different animals in a zoo, etc. Such informations which we collect on a subject is called data beta. So data is a collection of facts and numbers or figures. I hope you understood well about data. So just do practice of that one. It's very important. So we may represent a data by tables, pictures or graphs. So when we make use of picture symbols to represent informations, we call it pictorial representations or pictograph of the given informations, that means data beta. So drawing a pictograph for the given informations, example number 1 is there. So given the number of boys who like different fruits, so apple कितने बच्चों को पसंद है 5, ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है 4, बनाना 3 बच्चों को पसंद है, pear and then guava. So now represent the data as a pictograph. So solutions. We can represent the informations using figures of a boy to represent data. That means apple कितने बच्चों को पसंद है 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Here it is 5. क्योंकि जो हमारा 1 सिंबल है ये 1 बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है 1, 2, 3, 4. इस तरीके से हम 4 सिंबल बनाएंगे. Banana 1, 2, 3, we just make it like that one. Pear 4 and guava 2. So I hope you understood this pictograph. Now next example. The informations about the number of books on a different subjects in a school library is given below. Science 30, art 60, history 15 and GK 40. So ये different subjects हैं. So और ये इनकी books हैं. Represent the informations by a pictograph. Solutions. It's difficult to draw 50 or 60 figures. Is it possible? अगर मैं साइंस के यहाँ पर शो करती हूँ 30, तो क्या मैं 30 बुक्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ? Is it okay? No, it's very difficult. So we use 1 pictures to represent 10 books and draw the pictograph. So एक ये जो हमारी बुक है ये शो करती है equal to 10 books. So now साइंस के लिए this is 10, 20 and 30. We just show it very easily. आर्ट्स कितने बच्चों की नंबर ऑफ बुक्स कितनी है आर्ट्स की 10, 20, 30, 40, 50, 60. So they are 60 books. Similarly हिस्ट्री के 50 and GK कितने हो गए 10, 20, 30 and 40. So this is how we just draw the pictograph. I hope you understood well. Now reading and interpretations of a pictograph. Here it is given. Look at this pictograph and answer the questions. Games children like in a class. फुटबॉल कितने बच्चे पसंद करते हैं? एंड येस डू रिमेंबर ये जो हमारा सिंबल है ये शो करता है 2 चिल्ड्रंस को. सो फुटबॉल हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक फुटबॉल? येस 2, 4, 6, 8, 10. तो हम कह सकते हैं फुटबॉल कितने बच्चों ने पसंद करें 10 बेटा. हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टेनिस? टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं 2, 4, 6, 8 and 10. ये भी हमारे 10 है तो वी जस्ट राइट इट 10 ओवर हेयर. नाउ विच गेम इज लाइक्ड द मोस्ट? सबसे ज़्यादा कौन सा गेम पसंद आ रहा है? क्लियरली हमारा दिख रहा है क्रिकेट. सो वी जस्ट राइट इट क्रिकेट बेटा. एंड हाउ मैनी लाइक इट? सो 2, 4, 6, 8, 10 and 12. सो ये हमारे बच्चों को पसंद है 12 बच्चों को पसंद है. विच गेम इज लाइक द लीस्ट एंड हाउ मैनी लाइक इट? विच 2 games are liked equally? So these are the questions. Just read and practice and do it yourselves beta. So now just move on next. Sometimes we have to use a part of fractions of a pictures to show a number. So look at this pictograph. Number of children in a different classes like class 1. ये जो हमारी फुल पिक्चर्स है ये शो करती है बेटा 10 चिल्ड्रन को और हाफ जो पिक्चर है वो हमारी शो करती है 5 चिल्ड्रन को. सो क्लास 1 में कितने हमारे बच्चे हो गए? येस सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए हमारे. इस तरीके से हम करेंगे क्लास 1 का 5 into 10. सो प्लस 5. सो 50 + 5 55 ये हमारे बच्चे हो गए. क्लास 2 में 6 into 10 दैट मीन्स 60 हो गए.
क्लास 3 में 4 इंटू 10 दैट मीन्स कितने हो गए हमारे स्टूडेंट्स 40 एंड क्लास 4th का हमारा हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 5 सो दैट मीन्स देयर आर 35 स्टूडेंट्स बिकॉज हाफ पिक्चर हमारी शो हो रही है 5 के लिए. So we can make other kind of charts to show what is given in the pictograph above. For examples, we can make charts on a squared paper like these two types of charts given below. Each square represent 10 children. So like number of students given है और ये हमारे क्या given है? Yes, it's a class 1, 2, 3, 4. So that means ये जो हमारा वन बॉक्स है ये हमारे 10 चिल्ड्रंस के इक्वल है. तो कितना हो गया बेटा ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड यस ये हमारा कितना है हाफ है. तो 50 और हाफ कितना हो गया 55. सिमिलरली 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये 60 हो गए. 10, 20, 30, 40 और ये हमारे कंप्लीट कितने हो गए 50. सिमिलरली 10, 20, 30 और हाफ हमारा हो गया 35 बेटा. तो इसी तरीके से ये भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये उसका डाटा है. सो वी कॉल सच चार्ट्स बार चार्ट्स और अ बार ग्राफ्स. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज अ टैली मार्क्स. We can collect data by using tally marks. Tally marks are used to count numbers. Each group of tally marks has 5 marks. The 5th mark crosses the other 4 to keep the group together. See the example for more clarity. So, like here it is example. In a class, the number of boys liking different games are as given below. क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है 8. हॉकी कितने बच्चों को पसंद है 5. फुटबॉल लाइक करते हैं 7. चेस 6 एंड बैडमिंटन 4. सो द अबव इंफॉर्मेशंस में बी कलेक्टेड एज अंडर. किस तरीके से लिखेंगे क्रिकेट टैली मार्क्स में हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए ये कट करेंगे एंड 6, 7, 8. तो कितने बच्चों को पसंद है और वी कैन से दैट कितने बॉयज़ को क्रिकेट पसंद है दे आर 8 बेटा. हॉकी 5. सो कैसे लिखे हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमने एक स्लांट लाइन करी. सो दैट मीन्स दे आर 5. फुटबॉल 7. चेस हो गए हमारे 6. सो 5 और 1 6 और ये टैली मार्क्स हो गया बैडमिंटन के लिए 4. 1, 2, 3, 4 दिस इज 4. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन टेक्सटिंग टाइम 18.1. In a class, the children were asked about their favorite dish. बच्चों से पूछा गया कि उनकी फेवरेट डिश कौन कौन सी होती है. सो हम क्या करेंगे डाटा कलेक्टेड गिवन बिलो. फेवरेट डिश पिज़्ज़ा 10 बच्चों को पसंद है. नूडल्स 8 बच्चे लाइक करते हैं. पेस्ट्री 4 स्टूडेंट्स को 4 बच्चों को पसंद है और केक पसंद करते हैं 12 बच्चे. सो नाउ रिप्रेजेंट अबव इंफॉर्मेशंस बाय अ पिक्टोग्राफ. सो हाउ टू मेक इट लेट्स सी. सबसे पहले हम लिखेंगे फेवरेट डिश. सो यहाँ हो गई फेवरेट डिश और ये हमारे हो गए चिल्ड्रन. सो वी जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस वन, दैट वन और हेयर इट इज लाइक दिस वन. अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि इफ़ आई एम मेकिंग सिंबल लाइक आई एम जस्ट यूजिंग सिंपल सर्कल हेयर. सो दिस सर्कल्स डिनोट 2 चिल्ड्रन. ये मान के चलते हैं कि ये जो मेरा सर्कल है ये 2 बच्चे शो करता है. तो पिज़्ज़ा अगर हम लेके चलते हैं तो ये जो डिश है हमारी पिज़्ज़ा है 10 बच्चों को पसंद. तो ये हमारा एक है 2, दिस इज़ 4, 6, 8 और 10. तो ये कितने बच्चे हो गए हमारे 10 बच्चे हो गए. नूडल्स इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट नूडल्स तो नूडल्स कितने बच्चों को पसंद है 8. सो दिस इज़ 2, 4, 6 एंड 8 बेटा. नाउ पेस्ट्री कितने बच्चों को पसंद है. पेस्ट्री हमारी पसंद है 4 बच्चे. तो दिस इज़ 2 एंड 2 ये हमारे हो गए 4. नाउ केक इज़ लाइक्ड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट. सो केक पसंद है 12 बच्चों को. सो दिस इज़ 2, 4, 6, 8, 10 एंड दिस इज़ 12 बेटा. सो दिस इज़ हाउ वी जस्ट मेक द डाटा थ्रू पिक्टोग्राफ. I hope you understood well. So beta these are the other questions. You have to complete it yourselves. So with this we have ended up the chapter. I hope you understood well.
So you only need to do practice beta, do practice and do rest of these exercises by yourselves.